Good morning, dear students. Dear students, today we are going to start the second poem of your book Focus, The Star Tree. Okay, and it is written by Ron Mandrake. Who is the poetess of the poem? Ron Mandrake. So, students, before starting the poem, we should know about the poetess of the poem. Ron Mandrake is a well-known contemporary writer. रॉन मैंड्रिक एक बहुत जानी पहचानी कंटेम्प्रेरी राइटर हैं. शी वर्क्स एज अ स्टॉक ब्रोकर इन मुंबई. हर एक्चुअल नेम इज़ रोहिणी हैंड्रिक्स. व्हाट इज़ हर एक्चुअल नेम? उनका वास्तविक नेम है रोहिणी हैंड्रिक्स. रॉन मैंड्रिक इज़ अ पेन नेम. रॉन मैंड्रिक हर उसका पेन नेम है. पेन नेम क्या होता है? जो राइटर जब कुछ लिखता है तो उसमें जो वो अपना नेम यूज़ करता है लिखने के लिए, तो वो पेन नेम कहलाता है. ओके, एक होता है पेट नेम. पेट नेम घर पे बोलते हैं जो हमारे पेरेंट्स. पेन नेम जो राइटिंग्स में जिस नाम से वो बुक या वर्क जो पब्लिश होता है पोइट्स या फिर किसी राइटर का, तो दैट इज़ कॉल्ड पेन नेम. ओके, शी एक्सेल्स इन राइटिंग चिल्ड्रंस पोइट्री. उन्हें बच्चों के लिए कविताएं लिखने में महारत हासिल है. मतलब वो मेनली शी राइट्स फॉर चिल्ड्रन. ओके, सो लेट अस स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स. द पोएम स्टार ट्री बाय रॉन मैंड्रिक. As I sat in my garden to gaze at a tree, I heard the music and laughter beckoning me. On the breath of a breeze, the tree seemed to sigh, turning itself into a velvet night sky. Each leaf was a star that glittered blue bright, and I was a tiny silver white sprite. With pale purple wings, I flew with flowers, turning beetles to butterfly with magical powers. Spirits of the sky, tree invited me to play, chasing lazy starbeams that wandered out our way. Bells chimed a spirit song. We held hands to dance, twirling and swirling in a sprightly wild prance. As the sun bathed the tree and I awoke with a start, the beat of the sprite song still in my heart, I gazed at the tree, heard a laugh from afar, as a leaf fluttered down in shape of a star. So dear students, it's totally imaginative poem, as it was told to you that it is written by Ron Mandrake. What does the writer imagines? He imagines herself a fairy. Okay, as I sat in my garden, the writer goes to her garden and then he sat there and he started gaze at a tree. He started gazing at a tree. Gaze होता है बेटा देखना. राइटर क्या है, अपने गार्डन में जाती है और वो बैठ जाती है और फिर एक ट्री को देखने लग जाती है. आई हर्ड म्यूज़िक एंड लाफ्टर बैकनिंग मी. तो क्या सुनाई देता है उसको कि एक मधुर संगीत और हंसी सुनाई देती है जो उसको अट्रैक्ट. बैकनिंग होता है अट्रैक्ट करना. टू फैसिनेट, टू अट्रैक्ट, कि उसको अट्रैक्ट कर रही है एक हंसी, एक म्यूज़िक. ऑन द ब्रेथ ऑफ अ ब्रीज. और जैसे ही हवा चलती है, ब्रेथ ऑफ अ ब्रीज ये नहीं कि सांस ये नहीं कि हवा सांस लेना शुरू कर देती है. ब्रेथ ऑफ अ ब्रीज मीन्स जैसे हवा चलना शुरू होती है, जैसे ही हवा चलती है द ट्री सीम टू साई. साई होता है बेटा सांस लेना, आह भरना. तो ऐसा लगता है मानो वो ट्री सांस ले रहा है जैसे ही उस हवा चलती है और उस पेड़ के बीच से गुजरती है, पत्तों में से जाती है. तो ऐसे ही लग रहा था जैसे वो पेड़ सांस ले रहा हो.
टर्निंग itself into a velvet sky। और ऐसा लग रहा था मानो इस पेड़ ने, इस ट्री ने अपने आप को एक गहरे काले वेलवेटी स्काई में चेंज कर लिया था, चेंज कर रहा है ये। Each leaf was a star that glittered bright। और इसका हर एक पत्ता ऐसा लग रहा था मानो कि वो कोई स्टार हो जो कि नीले रंग का चमक रहा था। And I was a tiny silver white sprite। स्प्राइट होता है बेटा छोटी सी फेयरी, एक परी, ठीक है। और poetess imagines here that each leaf of the sky turned into star and she herself found herself to turn into a fairy with pale purple wings and now she has wings। She imagines that she has pale purple wings। pale होता है थोड़ा पीलापन लिए हुए, purple wings होता है पंख। तो बिल्कुल she doesn't have bright wings, she got pale purple wings। I flew with the flowers। और ऐसा लग रहा था she was imagining that she is flew with the flowers, she is flying with the flowers, okay, turning beetles into butterflies with magical powers। And now we read that poetess found herself as a fairy। Now she imagines herself as a fairy and now she got magical powers also and she turns the beetles into butterfly with her magical powers। ओके, वो अपने आप को फेयरी में चेंज पाती है कि वो फेयरी बन चुकी है और वो अब उसके फेयरी बनकर पोएटेस के पास मैजिकल पावर्स भी आ चुकी हैं और वो क्या पाती है कि वो जो वहाँ पर बीटल्स थे उनको वो बटरफ्लाइज में चेंज कर रही है क्योंकि अब उसके पास मैजिकल पावर्स आ चुकी हैं। तो पोएटेस इन दिस पैराग्राफ वी रेड दैट ईच लीफ वाज अ स्टार दैट ग्लिटर्ड ब्लू ब्राइट, के हर पत्ता एक स्टार में चेंज हो चुका है, एक स्टार ऐसा लग रहा था कि हर एक पत्ता एक स्टार बन चुका था। एंड और वो खुद पोएटेस अपने आप को एक फेयरी बनी हुई पाती है और उसको पर्पल विंग्स भी मिल चुके हैं, पर्पल विंग्स है उसके और वो फूलों के साथ उड़ रही है, फूलों पे उड़ रही है एंड टर्निंग बीटल्स टू बटरफ्लाई। और ऐसा लग रहा था और वो उसके पास अब फेयरी बन के मैजिकल पार्ट्स उसके पास है पोएटेस के पास और वो बीटल्स को भी बटरफ्लाइज में चेंज कर रही है। स्प्राइट्स द स्काई ट्री इनवाइटेड मी टू प्ले। स्प्राइट होता है फेयरीज एज इट वॉज टोल्ड टू यू। तो जो उस ट्री के आसपास और जो फेयरीज थी वो उसको बुलाती है पोएटेस को। नाउ शी हैज़ टर्न्ड इनटू अ फेयरी एंड अदर स्प्राइट्स ऑफ द ट्री called her to play with them, okay, chasing lazy star beams that wandered our way। और जो स्टार बीम्स होता है बेटा रेज, जो रोशनी निकलती है, रोशनी की किरणें जो होती हैं दैट इज़ कॉल्ड बीम्स। जो स्टार बीम्स होता है जो स्टार से रोशनी की किरणें आती हैं that is called star beams। तो other fairies call the poetess to play with them and to chase। chase होता है पीछा करना, lazy आलसी, कि जो आलसी धीरे धीरे जो आ रही है स्टार बीम्स, जो धीमी जो स्टार्स है उनमें से जो रोशनी की किरणें आ रही है, wandered our way, जो उनके रास्ते में आ रही है उनका पीछा करें। bells chimed होता है बजना, a स्प्राइट सॉन्ग बेल्स जो है घंटियाँ भी एक मधुर संगीत बजाएंगी। वी हेल्ड हैंड्स टू डांस, और हम एक साथ हाथ में हाथ डालकर डांस करेंगे। ट्विलिंग एंड स्वर्लिंग इन अ स्प्राइटली वाइल्ड प्रांस, और घूमेंगे नाचेंगे गाएंगे और खूब स्प्राइटली वाइल्ड प्रांस मीन्स एनर्जेटिक डांस, मतलब खूब अच्छे से हम खूब खेले कूदेंगे, मज़े करेंगे, मस्ती करेंगे। तो इन दिस पैराग्राफ वी हैव रेड दैट, तो ये जो ट्री की में जो दूसरी स्प्राइट्स हैं, जो दूसरी और फेयरीज हैं, वे पोएटेस को बुलाती हैं कि अपने साथ खेलने के लिए,
और वो कहते हैं कि हमारे साथ आके खेलो और जो लेज़ी स्टार बीम्स है जो उनके रास्ते में आ रही है उनका पीछा करेंगे वो। और कहते हैं कि जो घंटियाँ हैं वो एक अच्छा सुंदर गाना मधुर संगीत बजाएंगी और हम हाथ में हाथ डालकर घूमते हुए अच्छे से डांस करेंगे, मस्ती में डांस करेंगे। As the sun bathed on the tree, और जब सुबह होती है, it was a dream, है ना। The poetess imagines all the things in a dream. As the sun bathed the tree, और जैसे ही सूरज की किरणें उस पेड़ पर पड़ती हैं, I awoke with a start, और मैं एकदम से जाग जाती हूँ। The beat of the spirit song still in my heart, और जो सॉन्ग था उसका अभी भी उसकी बीट अभी भी ऐसा लग रहा है मेरे दिल में है, पोइटस के अभी भी दिल में है उसकी बीट। I gazed at the tree, और मैं दोबारा से उस पेड़ की तरफ देखती हूँ। He heard a laugh from afar, और ऐसा लग रहा है कि और मुझे फिर से वही हंसी जो मैंने रात को इमेजिनेशन में जो पोइटस ने अपने स्वप्न में सुनी थी, वही हंसी वो दोबारा से सुनती है। As a leaf fluttered down, और फिर इतने में ही एक पत्ता, fluttered down मतलब नीचे गिरना, एक पत्ता नीचे गिरता है in the shape of a star, और किसकी शेप का होता है वो, स्टार की शेप का एक पत्ता नीचे गिरता है। So dear students, we have read that as the sun bathed the tree. In this paragraph we have read that जैसे all the three paragraphs which we have read, we found that it was all about the imagination of the poetess. It seems like she was dreaming कि वो ड्रीम कर रही थी, रात को सपना देख रही थी। And as she woke up in the morning, जैसे वो सुबह उठती है तो अब उसे ऐसा लगता है कि वो जो रात का संगीत वो अभी भी उसके माइंड में, उसके दिल में गूंज रहा है, और वो उस पेड़ की तरफ देखती है तो उसे वही हंसी सुनाई देती है, और इतने में ही पेड़ से एक पत्ता टूट के गिरता है जो कि स्टार के शेप का होता है। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स you all learn the poem very well. If still you have any problem, now you may message me or you may call me anytime. Now let's see the summary of the poem. The poet sits in a garden looking up at a tree. Poetess जो है वो अपनी गार्डन में बैठती है और अपने एक पेड़ को देखती है। She hears music and laughter that invite her to appreciate the beauty of the tree. और वो एक म्यूज़िक सुनती है, एक हंसी सुनती है, और जिससे कि वो ट्री को एडमायर करती है, उसके सराउंडिंग्स, उसके आसपास के वातावरण को एडमायर करती है। As the wind blows, जैसे ही हवा चलती है, the tree seems to sigh and it magically transform into the beautiful dark sky. हवा चलती है तो ऐसा लगता है कि मानो जो पेड़ है वो सांस ले रहा है, साई कर रहा है, आह भर रहा है, और ये अब जादुई रूप से अपने आप को एक गहरे काले आकाश में, वेलवेटी आकाश में, स्काई में चेंज कर लेता है। Each leaf becomes a star that shines blue bright, और हर एक पत्ता ऐसा लगता है कि नीला चमकने वाला सितारा बन गया है। And the poet herself becomes a tiny white fairy in this magical world, और इस जादुई से संसार में पोएटिस जो है वो खुद भी एक फेयरी बन जाती है, वाइट फेयरी बन जाती है, परी बन जाती है। द पोएट फ्लाइज विद द फ्लावर्स, और वो फूलों के साथ उड़ती है। विद द मैजिकल पावर शी टर्न्स द बीटल्स इनटू बटरफ्लाई, और अपनी जादुई शक्तियों के साथ वो बीटल्स को बटरफ्लाइज में चेंज कर लेती है। द अदर मैजिकल क्रिएचर्स ऑफ द स्काई ट्री invite the poet to chase the lazy starbeams that come their way, और जो और भी मैजिकल क्रिएचर्स होते हैं जो ट्री के आसपास, वो और दूसरी जो छोटी छोटी फेयरीज होती हैं वो पोएट्स को इनवाइट करती है टू प्ले विद दैम, टू प्ले विद द starbeams that come their way, जो उनके रास्ते में starbeams आते हैं उनको उनके साथ खेलने के लिए वो उसे इनवाइट करती है। As the bell ring out a magical song, जैसे ही घंटी एक गाना सुना, मधुर संगीत बजता है घंटी का, द पोएट एंड द अदर क्रिएचर्स होल्ड हैंड्स एंड डांस मैरिली, पोएट और अदर क्रिएचर
वो हाथ में हाथ डाल के डांस करती हैं। एज द सन शाइन्स ऑन द ट्री इन द मॉर्निंग, और जैसे ही सुबह सूरज निकलता है, द पोइट वेक्स अप सडनली, और जल्दी ही पोइट उठ जाती है। द म्यूजिक ऑफ द फेयरी सॉन्ग रिमेन्स इन हर हार्ट एज द पोइट लुक्स एट द ट्री। और ये जो रात का जो सॉन्ग था उसका म्यूज़िक अभी भी पोइट के हार्ट में रहता है जैसे वो पेड़ को देखती है। शी हियर्स द लाफ फ्रॉम हर ड्रीम अगेन, और वह दोबारा से उसे वही हंसी सुनाई देती है जो उसने रात को सपने में सुनी थी। अ लीफ फ्रॉम द ट्री फॉल्स डाउन, और पेड़ से एक पत्ता गिरता है। इट शेप लाइक अ ट्री जस्ट लाइक द वन शी सॉ इन हर ड्रीम, ये उसी शेप का होता है जैसा कि उसने अपने सपने में देखा था। So, dear students, I hope you understood the poem, you understood the summary of the poem. Okay, and if still you have any question, you may write in the comment box too. And don't forget to like, share and subscribe my channel.